So I have put down all your questions. One by one, I'll answer all your queries. So first question is, which course structure you should go ahead after 12th, correct? So looking at your prediction which you have done, looking at your old brain map, humanities if you want to go, it is perfectly fine, there is nothing wrong. दूसरा मैथमेटिक्स का जहाँ तक क्वेश्चन है, आई फाइंड हिम टू बी relatively more scared than incompetent Correct. I agree, sir. with mathematics. That is okay, fine. 72 के आसपास का अगर मेरा एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है ऑन अ स्केल ऑफ 80 इन मैथमेटिक्स, मैं इसको लार्जर पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि कल को कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हमको देना है, be it GPSC, be it UPSC, be it any other government exam related to defense forces, LIC, RBI, IBPS, everything would require basic mathematics. और जो इसका स्केल है उसमें 10th लेवल का मैथमेटिक्स आता है, he should be comfortable with it. There is nothing much in that. He should be comfortably able to do that. So go with the humanities. That is the answer number 1, right? So I'll plan of action, I'll keep writing. So go for humanities. Now my one question after having said go for humanities is, how consistent you had been with reading over and above your school curriculum? School curriculum. So I have read some books. Like आपने बोला था कि read करना है, तो Thus Spoke Chanakya. I have read it. मैं अगर 2024 की बात करूं फुल ईयर में, how many books you think you would have read? 4, around 4. Around 4. Will we be in a position to escalate that read from one book a quarter to one book a month and then one book a week? 100%. That is something which will excite you, make you feel comfortable. तो ह्यूमैनिटीज के अंदर करंट स्ट्रक्चर में जो अपने सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, Last week, sir. उसके अंदर वी शुड गो फॉर इंग्लिश, हिस्ट्री, Right, sir. so it has to be either or between psychology and sociology. Yes. Go for sociology, then go for political science, and go for legal studies in 11th 12th. इस स्ट्रक्चर के साथ one of the toughest courses within the domain of humanities is law. Yes. लॉ के इस प्रोफाइल पोर्टफोलियो में 3 बेनिफिट है. एक, कल को हम कुछ भी करते हैं, यूपीएससी जीपीएससी में जाते हैं, कोई और गवर्नमेंट एग्जाम में जाते हैं, कहीं हमको कुछ सक्सेस नहीं मिल पाता, हमारे पास एक फुल फ्लेजेड प्रोफेशनल डिग्री है जिसके बेसिस के ऊपर हम कहीं से किसी भी तरह का खुद का प्रैक्टिस या तो लॉ फर्म के अंदर जॉब कर सकते हैं. सो इट इज जस्ट लाइक, इट इज एज promising as a CA or as promising as a medical doctor. That is one benefit. Second benefit, 60% of your preparation for UPS and GPSC is what you are going to study in 5 years of law, Correct. right? Great. Third, law as a field opens another domain of judicial services
which are equivalent to IAS, IPS, IRS, IFS and so on. So can you elaborate what are judicial services? Judges. So आप लोअर कोर्ट में एज जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, स्टेट जुडिशरी क्लियर करके आप JFMC बनते हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. उसके बाद यू कीप एलिवेटिंग योरसेल्फ एज सिटी सिविल जज, प्रिंसिपल जज एंड सो ऑन सो फोर्थ. फ्रॉम देयर अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, केस डिलीवरी बहुत अच्छी है, वहाँ से यू कैन एलिवेट योरसेल्फ एंड गो विद एंड बिकम जज विद द हाई कोर्ट. फ्रॉम हाई कोर्ट यू कैन एलिवेट योरसेल्फ टू सुप्रीम कोर्ट. सो जुडिशियल सर्विसेज आपके लिए ओपन है. सो ये 3 बेनिफिट्स हैं. पैरेलल टू 11th में क्या क्या करना चाहिए? Along with 11th, build a strong reading habit because you will have a lot of time. The school subject requirement in humanities is very minimal. That will not consume more than an hour or a couple of hours in a day. Rest of the time you have with yourself. Read a lot in 11th, nothing more, nothing less. What kind of reading? That I will tell you. So I will send you the list of books, That's right? Will send the list of books. Right? Then we talk about you've asked me about different kinds of specializations within humanities. Specializations अगर total count करो तो there are 114 specializations within humanities, जिसके अंदर women studies से लग के developmental studies से लग के specialization in history, geography, political science, sociology, psychology, philosophy, social work, rural studies, child and women development, and so on. There are 114 specializations within humanities. कोई भी एक सिंगुलर स्पेशलाइजेशन हम उस केस में रिकमेंड करते हैं जहां बच्चा एकेडमिकली मीडियोकर हो और उसका रीडिंग बहुत पावरफुल ना हो. हमारे दोनों केसेस नहीं हैं. सो सिंगल स्पेशलाइजेशन इज नॉट समथिंग विच यू शुड एम फॉर. हो सकता है डाउन द लाइन 12th के एंड पे वी माइट नीड टू स्विच टू अ सिंगुलर स्पेशलाइजेशन if somewhere we are unable to take a complete charge of our subjects of 11th 12th plus extra reading we don't do. वैसे केस के अंदर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे, बट दैट इज समथिंग विच इज अ लेटर ऑन इशू. अभी नहीं सोचेंगे. अभी हम फोकस ये करेंगे कि 11th 12th में ह्यूमैनिटीज लेंगे, 11th के अंदर ढेर सारी रीडिंग करेंगे, 12th के साथ साथ हम दैट इज जनवरी 2026 से लेके दिसंबर 2026 के बीच में हम नेशनल लेवल लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे और दिसंबर 2026 के अंदर इसका क्लैट का एग्जाम होगा. सो जनवरी 26 टू दिसंबर 26 प्रिपेयर फॉर CLAT and appear for national level entrance exams of law in December 2026. क्लियर हो गया यहाँ तक? राइट. सो हम स्पेशलाइजेशंस और बहुत सारी हैं, अभी उसका कोई मतलब नहीं है स्पेशलाइज का. वी शुड फोकस ऑन लॉ बिकॉज लॉ इज सपोज टू बी द टफेस्ट, बेस्ट एंड द मोस्ट intellectual combination of subjects which you can study in your graduation. Clear? Next, looking at subjects of choice including geopolitics, history, philosophy, psychology. I believe ये सारी चीजें आप लॉ में कहीं ना कहीं टच बेस करेंगे ही करेंगे. प्लस सिंस एनी एरिया ऑफ सिविल सर्विसेज require you to be a voracious reader,
वो हम 11th के साथ साथ एक बेसिक हैबिट डेवलप करेंगे ही करेंगे। प्लस ग्रेजुएशन के साथ साथ हम हमारा फोकस सिविल सर्विसेज ओरिएंटेड रीडिंग के ऊपर ले जाएंगे। Correct. आज नहीं, आज हम ओपन रीडिंग करेंगे, विच विल डू टू बेनिफिट्स टू मी। वन, बिल्ड माई रीडिंग हैबिट। टू, बिल्ड माई कॉम्प्रिहेंशन परस्पेक्टिव। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव परस्पेक्टिव में वो तेरे को इकोनॉमिक्स का पैराग्राफ देगा या बिजनेस का देगा या वर्ल्ड पॉलिटिक्स का देगा, इज नॉट इन योर हैंड। So you should, your reading has to be very versatile in the beginning. Once we start focusing on civil services, that is during your graduation, उस टाइम पे हम 5 मेजर सब्जेक्ट्स जो जनरल स्टडीज के हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, इसके ऊपर फोकस करेंगे। बट दैट इज आफ्टर ग्रेजुएशन, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, अभी उसका कोई रोल नहीं है, इसीलिए मैं वो लिख भी नहीं रहा हूं। दिस इज जस्ट फॉर योर basic understanding and knowledge. ठीक है? Then comes UPSC, which is the, you asked me the question that which is the best subject combination for UPSC. It does not matter. अगर आप UPSC के टॉपर्स को देखो पिछले 10 साल के, आपको ऐसे टॉपर्स भी मिलेंगे UPSC में जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, ऐसे भी मिलेंगे जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, ऐसे भी मिलेंगे जो फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, ऐसे भी मिलेंगे जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं। पॉइंटर यूपीएससी का बड़ा सिंपल है कि 3 पैरामीटर्स आपके साथ मैच करने चाहिए। 1, you have to be a voracious reader. Second, your memory and retention has to be super strong. And third, your caliber and capability of working for a longer duration of time on academia has to be very good. UPSC कैट एग्जाम की तरह नहीं है कि मैंने एग्जाम से पहले 4 महीने दबा के मेहनत कर ली, यूपीएससी हो गया। इसलिए मैं बोला यूपीएससी इज अ 6-year गेम प्लान। और मैं तो इवन टू द एक्सटेंट बोलता हूं कि इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट फॉर UPSC is a 5-year game plan from pre-final year. ध्यान से समझो इसको क्या बोल रहा हूं मैं। After 12th, law is a 5-year degree program. उसके pre-final year से, that means 4th year से, it is a 5-year game plan. Because you can appear for the first time when you cross the age 21. वो आप एनीवेज 4th ईयर के बाद हो जाएगा आपका, जब आप 5-year डिग्री प्रोग्राम में हो। तो फाइनल ईयर में आप फर्स्ट टाइम यूपीएससी प्रीलिम्स दे सकते हो। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस क्लियर हो गया और हम यूपीएससी में घुस गए, ऐसा नहीं होता है। वी आर वन ऑफ द चोजन लॉट। नहीं होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि एक अटेम्प्ट लिया छोड़ दिया, देन यू वर नॉट अ सीरियस कैंडिडेट फॉर यूपीएससी। यूपीएससी का सीरियस कैंडिडेट वो है जो 5 साल का गेम प्लान लेके चलता है, और उसमें ठीक है फ्रस्ट्रेशन आएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छा हो गया, प्रीलिम्स निकल गया, सेकंड में हो सकता है प्रीलिम्स ही नहीं निकला, तो तुमको यूजलेस फील होगा कि व्हाट नॉनसेंस, हैव आई डिटीरियोरेटेड ऑन माय इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और व्हाट। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ 5-year गेम प्लान। एक बार शिद्दत से उसको प्री फाइनल ईयर से लग के 2, 3, 4, 5 जितने अटेम्प्ट कॉन्फिडेंस के साथ, जितने अटेम्प्ट मेंटल प्रिपरेशन के साथ हम दे सकते हैं, हम उनको शॉट देंगे। होता है ग्रेट गन्स, आई विल सी यू समडे इन अ गुड कैडर इन अ ग्रेट स्टेट सर्विंग अ डिस्ट्रिक्ट एंड देन मूविंग आउट फॉर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ दैट स्टेट। अदरवाइज नथिंग टू वरी। बैकअप के लिए कमिंग फ्रॉम लॉ, यू हैव जुडिशियल सर्विसेज ऑन हैंड, प्लस इट्स अ प्रोफेशनल डिग्री। कुछ नहीं हुआ तो घर पे बैठूंगा और लॉ की प्रैक्टिस करूंगा। आई कैन गो टू द हाई कोर्ट, आई कैन गो टू द सेशन कोर्ट, आई कैन गो टू द फैमिली कोर्ट, आई कैन गो टू द लोअर कोर्ट, डिपेंडिंग अपॉन मेरा किस तरह का सर्कल सेटअप नो हाउ है जिसमें मैं काम करना चाहता हूँ। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो योर यूपीएससी जीपीएससी इज टेकन केयर, इंफॉर्मेशन क्लियर। कुछ भी अभी हमको लेफ्ट राइट उसके बारे में सोचना नहीं है। योर सब्जेक्ट्स आर फेयरली अलाइंड विद व्हाट यू रिक्वायर इन जनरल स्टडीज इन यूपीएससी।
Subjects in school, I have cleared, told you, written that. Specializations with humanities, I have shared with you. Your interest in geopolitics, history, psychology is fine. Okay. For subject like psychology, subject like anthropology, subject like museology, subjects like paleontology, to be very honest, they are subjects which are nice, fascinating words, Correct. I 100% agree. right? और ये जो सीरीज आजकल चलती हैं, दे एलिवेट द मूवमेंट ऑफ दीज वर्ड्स विद इन द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन. Psychology is a very small subject area of research. Correct. Research within the domain of Politics. combination of statistics, economics and politics. Correct. अगर कोई बच्चा मुझे ये बोलेगा कि सर मैथ्स इज नॉट माई लव एंड आई वॉन्ट टू बी अ साइकोलॉजिस्ट, मैं उसको बोलूंगा बच्चे यू आर मूविंग इन नॉट अ वेरी करेक्ट डोमेन. समझ गया? Point. पक्का है? बिकॉज प्रशांत किशोर को देखता है कभी? हाँ. डेटा कैसे थ्रो करता है वो? टक 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 ऐसे डेटा थ्रो करता है वो. Maths. और वो डेटा किसी के गले उतारने के लिए आपका खुद का स्टैटिस्टिक्स एनालिटिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. मैं परसों एक बंदे को मिला निर्मा यूनिवर्सिटी में, यंग बॉय, मस्ट बी 30 years. He says, I started my career at the age of 20, right? And I have personally written 30,000 international essays. Oh. किसी को भी ये मैं डेटा थ्रो करूंगा तो यू विल गेट अ साई ऑफ वाओ. I did not get that sigh because I looked at his face and I was trying to tell him, make fool out of somebody else. 30,000 essays का मतलब समझते हो 10 साल में? 1,000 essays a 3,000 essays a year. Yeah. So 3 every 10 every day. 10 every day. Oh, it's big. किसी के बाप की औकात नहीं है कि वो रोज 10 ऐसे लिख सके. Psychology is a game plan which might come with a reasonable fascination with politics. So I think more than psychology, being a political analyst or being a political scientist or being a political critique for a background domain like you could be a better option. Good. But politics का मतलब हर जगह prediction of election results नहीं है. Policies or what? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, राइट? एंड वो आप एनीवेज यू बिकम अ रीजनेबल गुड, आई वुड से कंज्यूमर एज वेल एज researcher as well as executor of the same once you are preparing for civil services kind of a domain. तो ठीक है, उसमें मतलब आई एम नॉट वेरी फैसिनेटेड टू टेल यू कि हाँ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज योर डोमेन. नीदर आई वांट टू टेक यू अवे फ्रॉम इट कि ना 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 दिस इज नॉट योर डोमेन. आई एम ओके विद इट, दैट्स गुड, नथिंग इज रॉन्ग. यू आर एनीवेज विद इन द सिमिलर लाइन फ्रेम, you'll be able to do it. कोई इसमें issue नहीं है. But we are not going to get fascinated with a word or with a subject, because right now probably what I am putting you on is a set of 60 subjects of law which you are going to study in 5 years. So basically you are covering the entire constitution of the country. That is what you require for having a very good
on ground knowledge of how system works. Correct. I think that's okay. Additional courses जो आपने बात की है, again for 11th 12th only two things: read a lot in 11th, continue reading and add law preparation in 12th. क्या होता है law preparation? Law preparation is going to be a general aptitude. So law entrance exams will expect you to answer questions from 10th level maths, 10th level English. Logic or reasoning is a section which unfortunately is not taught in school, right? So I can't declare a level. General knowledge and current affairs, which majority of the children don't study. If you're studying, it's good. And legal reasoning is a section where you're not expected to know the law, but you are basically expected to run your logical mind to interpret and apply law. So you may get a case ki you are walking on IIM road and you hit your scooter with a old gentleman. The old gentleman falls on the parapet, hits his head on the parapet and dies. Are you liable of punishment? So your first question will be, what does the law say? Emotion से कोर्ट में जवाब नहीं मिलता है. Rule of the law, book से जवाब मिलता है. So I give you two different laws. So one law I give you that pedestrian has the right of way. If I apply this law in your case, you are liable of punishment. आपको सजा मिलनी चाहिए. Now I give you another law which says crossing from a non-zebra crossing is the fault of the pedestrian. Correct. So if your accident happened midway, then it's not your fault. Somebody just came in front of your car to hit himself or hurt himself. That's not your fault. So you're not liable for punishment. So such kind of logical thoughts are there as part of the paper. Again, बहुत सारे इवन हम लोग भी 2 साल की प्रिपरेशन करते हैं. 10th के बाद बच्चे को लॉ के लिए बहुत सारे IMS है, ई कोचिंग है, ये सब लोग 2-2 साल की प्रिपरेशन करते हैं. इट इज़ मोर ऑफ अ फूलिंग सिस्टम. फूलिंग सिस्टम में क्या है कि क्योंकि कॉम्पिटिटर भी कर रहा है तो मुझे भी करना है, वो वाला फंडा है. ज़रूरत नहीं है. मैं अभी इस साल से मतलब हमने बहुत कैटेगोरिकल डिसीजन लिया है. 11th के अंदर हम सिर्फ स्टूडेंट को बुक्स रिकमेंड करके छोड़ देंगे. उसको वो बुक्स खुद से पढ़नी है. No classes. अगर उसकी उस लेवल की सिंसेरिटी 12th में दिखाई देती है, वो आके मेरे को बोलता है कि सर आपने मेरे को 50 बुक्स दी थी, मैंने 50 पढ़ ली. नाउ आई फील आई एम फिट टू गो फॉर प्रिपरेशन फॉर लॉ, तो उसको हम लॉ के लिए टेकअप करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे. सो अदरवाइज जैसे मैंने बताया IMS है, वो भी लॉ पढ़ाते हैं, ई कोचिंग पढ़ाता है, टाइम पढ़ाता है, देन एक आधा और इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, वो भी पढ़ाते हैं. वी कैन गो फॉर दैट. अभी 11th में मेरे हिसाब से कुछ नहीं करना चाहिए. 1 year प्रिपरेशन इज मोर देन सफिशिएंट. So for 11th, you are recommending only reading. Read and 1 book a week if you have to read, believe me, it's going to take a toll. तेरे से साल में 50 बुक्स पूरी नहीं होंगी. It is a difficult preparation. मतलब मैं 50 का टारगेट देता हूँ तो बच्चा 25 भी करके आता है तो मेरे को लगता है कि हाँ एफर्ट मारा है बच्चे ने. लेकिन 50 देता हूँ, बच्चा आके बोलता है 4 पढ़ी हैं, मैं बोलता हूँ छोड़ना यार, लॉ के पीछे क्यों जाना है. अपने कोई सादा BA करते हैं, डेवलपमेंटल स्टडीज़ में करते हैं, कॉग्निटिव साइंसेस में करते हैं, ऐसा कुछ सोचेंगे. मैं एक बुक रीड कर रहा हूँ, मेन कैंप ऑब्वियसली, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एडल्ट फिल्टर. मैंने ऐसा डिसाइड किया रोज के 50 पेजेस रीड करने. मैं अभी सिर्फ पेजेस के ऊपर. Good. I want that your pace should, your interest should build your pace. बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, पता लगा 2 दिन में रगड़ दी.
उस लेवल पे जगह, बिकॉज सी द मोमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट बोथ दीज थिंग्स, ईदर वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ और वी आर टॉकिंग अबाउट जुडिशरी फॉर दैट मैटर, दोनों केसेस के अंदर यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि रीडिंग इज योर एवरी डे जॉब. Correct. You have to read a plethora of files every day. कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. तो अगर वो आपका डेली रूटीन का एक हैबिट नहीं होगा, फंस जाओगे. लॉ का पास परसेंटेज क्या है? पास परसेंटेज इन द सेंस जितने लोग एग्जाम देते हैं उसके पर्सपेक्टिव में सीट्स 5%. और मैं अभी थोड़े दिन पहले ही एक मैं वीडियो भी बना रहा था. 80% बच्चा जो लॉ का एग्जाम देता है वो देता है जिसका फ्रेंड लॉ दे रहा था, उसको लगा यार अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैं भी दे देता हूँ. सीए में जैसे होता है, बिल्कुल सीए में भी यही होता है. बिल्कुल. बीकॉम के साथ क्या क्या करना है, बीकॉम के साथ सबको फाउंडेशन ज्वाइन कर लेना है. वो उसके बाद पैंट फटती है जब 50,000 में से 1500 बंदा आईपीसीसी तक पहुंचता है. आगे की पैंट फटती है 1500 में से 50 ही पहुंचते हैं सीए फाइनल तक. तो सो ठीक है, आई मीन आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. सो वी आर अ सीरियस कंटेंडर एंड एन एस्पिरेंट फॉर लॉ एंड सिविल सर्विसेज एज सीन टुडे. ये सिंसेरिटी कंटिन्यूड रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. सोशल मीडिया में घुस के कब डिट्रैक हो जाओगे वो तुम्हारे हाथ में, वो तुम्हारे हाथ में है. अभी भी हुआ कि जियोपॉलिटिक्स के रिलेटेड कुछ You have Diplomacy, समझो diplomacy. यूपीएससी करके द मोमेंट यू गो फॉर इंडियन फॉरेन सर्विसेज यू आर डूइंग व्हाट? यू आर डे इन डे आउट डीलिंग विद जियोपॉलिटिक्स. No, I think तुम्हारा ये क्या कर रहा है फॉरेन मिनिस्टर? जयशंकर पहले क्या था? एक एम्बेसडर था कंट्री. ही वॉज अ आईएफएस फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर. वो क्या कर रहा है? सारा दिन जियोपॉलिटिक्स ही कर रहा है. और ये सब लोग जियोपॉलिटिक्स अंडरस्टैंड करके जियोपॉलिटिक्स में ही काम करते हैं. हम लोग जिस साइड की जियोपॉलिटिक्स देखते हैं इज मोर ऑफ एन एनजीओ फ्रंट. यूनाइटेड नेशंस है, या तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है. देखा ना सबके मार पड़नी चालू हो गई. देख रहा ना सबके मार पड़नी चालू होगी क्योंकि बर्बाद ही एनजीओज ने किया है. और ये सारी एनजीओज काम धंधा कुछ नहीं करती हैं सिवाय सिस्टम को और ज्यादा बिगाड़ने के. लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का बंदा है और स्पेशली डिप्लोमेसी का बंदा है काम तो वो करता है. Those people understand geopolitics much better. Those people execute geopolitics much better. तुम्हारे लॉ में you will be having allied subjects like international political law, international trade law, international water law. पढ़ो, they are all part of geopolitics. इसमें क्या हो रहा है? तेरा जो स्वेज कैनाल है क्या हो रहा है? जियोपॉलिटिक्स. बॉटम लाइन इज जियोपॉलिटिक्स. अब तेरे को इंटरनेशनल वाटर लॉ समझ आए, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ समझ आए, तेरे को जियोपॉलिटिक्स 10 टाइम्स बेटर समझ आ जाएगी इन कंपैरिजन टू समबडी हु हैज ओनली रेड अ बुक ऑफ जियोपॉलिटिक्स. no. So he fond of reading, sir. 9th में उसने इसरो में कोई एग्जीबिशन हुआ था, वहाँ पे वो गया और ब्रह्मोस का बुक लेके आया, सर का लिखा हुआ. और पिल्लाई का लिखा हुआ. इनका तो विंग्स ऑफ फायर रीड किया. विंग्स ऑफ फायर लेके आया और he has gone through book within 3 months that day. तो 9th था और जब इच्छा हो तो पढ़ने बैठ जाता था. जब ये बैठता है तब 20-25-30-40 पेज वो पढ़ लेता है. और जहाँ तक मुझे पता है कि he do understand कि what he is reading. और एक अच्छा पार्ट है कि उसका वो थोड़ा मेमोराइज कर सकता है.
कि भाई उसके मेमोरी में थोड़ा रहता है कि क्या है. So I am asking him last time कि ये जो बुक्स है ना वो एक बार पढ़ी है, लेकिन और एक बार कभी टाइम मिले तो थोड़े डिस्टेंस के बाद पढ़ लो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जब मूड के साथ साथ अपने को डिटरमिनेशन और अंडरस्टैंडिंग अलग आता है. वो चीज, उस टाइप की बुक्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपने आप आपके हाथ में आ जाएंगी. अभी तो बुक्स ही इतनी है पढ़ने वाली, एक बार पढ़ने वाली बुक्स ही अगर मैं इतनी पढ़ लूँ तो आई थिंक इट विल बी टेकन केयर. सो अभी आई नीड नॉट रिपीट, बट इन ड्यू कोर्स जैसे कुछ बुक्स हैं विच आर सेल्फ अलाइनिंग बुक्स, उनको हम बोलते हैं कि और कुछ होना हो हर 2 साल में एक बार ये बुक पढ़ लो. सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, सेल्फ अलाइनमेंट बुक्स हैं, वो अपने आप आ जाएगा, वो ठीक है. वो मतलब कई बार क्या होता है कि मैंने 5 बुक्स पढ़ी, वो मेरे को बहुत फैसिनेट की, लेकिन छठी बुक मैंने ऐसी पढ़ ली जिसने मेरे को रीडिंग से ही दूर कर दिया. ऐसे केस में मैं आई गो बैक एंड रीड अ बुक विच फैसिनेटेड मी, मेक सेंस. बट इसके केस में तो आई गिव हिम अ लिस्ट, ही इज गॉट ट्रेमेंडस नंबर ऑफ बुक्स Okay. विच ही शुड स्टडी. Anything else sir you can recommend for him? कुछ भी नहीं, बस कुछ मैंने वो सब activity कुछ करने लिख दिया. जैसा अगर 11th में करना हो, कुछ नहीं, other than रीडिंग school. रीडिंग रीडिंग. योर एटलीस्ट 2 आवर्स पर डे शुड गो फॉर रीडिंग. एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ 50 बुक्स मैं अगर देता हूँ, साल भर के बाद हम मिलेंगे, आई विल बी मोस्ट हैप्पी इफ यू टेल मी आई हैव डन 40, क्योंकि 50 बुक्स रीडिंग इज अ टास्क. Tough. और टेक्निकली आपके पास 30 वीक्स हैं, अभी 50 भी नहीं है. सो जनवरी 2026 में क्लैट की तैयारी करनी है. वो क्लैट की तैयारी जैसे मैंने बताया सब जगह है, वहाँ पे जाके चालू करना है. गो स्टार्ट योर प्रिपरेशन. मेरे पास आना है, मेरे पास आ जाना. आई पुट यू क्रॉस टू सत्या. Okay. सत्या के पास चालू करेंगे. यही सब कर सकते हैं ना. So, શ્રી જાની જે કરે છે ને એ એગ્રીકલ્ચર અને લॉ से કર્યું છે. સર બહુ સરસ માહિતી દો કે બધી વસ્તુમાં લોજિક અને લॉ લાગવાના જ છે. લॉ આ બધા સબ્જેક્ટ્સ સાથે લॉ લેવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે તું પોલિટિક્સ સમજે છે, તું સોશિયોલોજી સમજે છે, તું એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ સમજે છે, પણ તું એના લॉ નથી ખબર તને તો તું વીક રહીશ. કોઈ તને કાઉન્ટર કરશે તો તું ફાસ્ટ ફॉरवर्ड. मैं हमेशा बोलता हूँ 2 करियर नो नॉनसेंस करियर्स हैं, ओके. एक लॉ और एक जर्नलिज्म. इन दोनों के साथ कोई पंगा नहीं लेता. अच्छा. सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया. जर्नलिज्म में उसको इंटरेस्ट बहुत है, तो अभी कुछ नहीं ना. Journalism is a very small task. I know. Law is a big task. So if you do law, you can do journalism anytime. अच्छा. But if you do journalism, you can't do law. इंटर लॉ कर तो ह्यूमैनिटीज में पेपर करी शकतो. Correct. Right? So I know people who are lawyers who are working as correspondents with Star News, working as journalists with Frontline, things like that. ये एक बड़ा फेमस स्टार का जर्नलिस्ट है, वो लॉयर है यहाँ, वो गोरा सा है, चश्मे वाला, नाम भूल गया, स्टार न्यूज़ पे आता है, वो लॉयर है. वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट आप देखोगे, उनका बैकग्राउंड उठा के अगर आप देखते हो, सो दे आर लॉ बैकग्राउंड पीपल. तो जर्नल के लिए सर शॉर्ट में कहना है तो और क्या कह पाओगे? एक read. That is the food for your brain, that is the food for your growth, that is food for improving your IQ. उसके अलावा अभी कुछ मुझे लिस्ट दे देना. that I am sending you. वो अभी मेरे को आपने मैसेज किया था ना कि जयवल ने किया था, नहीं मैंने ही किया था. तो मेरे को एक वापस मैसेज डाल दो या